Assalamu alaikum. Welcome to All About Attitude with the Naveed Mirza channel on YouTube. And I'd like to today start this introduction with introducing a person by the name of Shadab Hashmi. And he is going to be the first person whose story we're going to share on our new sub channel, in fact, new program that we have named Impactful Stories Worth Sharing. And these are going to be stories related to their struggles and focus on attitude and that part of attitude where what were their challenges and how they overcame them. तो challenges तो सबके होते हैं लेकिन हम लोग उसको कैसे overcome करते हैं, that's the whole point. And Shadab Hashmi, he lost his vision when he was around, started losing it as he was growing up, but around 10 years old and onwards it started getting bad, and then we'd say it started getting noticed and he started feeling the effects of it. और वो सारी कहानी है शादाब की जो हम इस आज के वीडियो में कवर करेंगे. तो शादाब ने बहुत हिम्मत की है. इनके साहब ने इनके I came to know him through Facebook and I met him personally and he introduced me to his son about few weeks back. And उस वक्त मुझे पता चला कि ये एक चाइनीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं आजकल with a very big organization in Pakistan. And that's how I got interested. मैंने कहा ये बहुत इनकी स्टोरी जो है मुझे लग रहा है हमारे नाजरीन को बहुत पसंद आएगी. तो मैंने फिर उनको इनवाइट किया और उनकी सबसे पहले मैंने कहा इनको हम ये स्पॉट देंगे जो सबसे पहले विल कवर हिज स्टोरी. And he also has written a book. That book is I Lost the Lights. And that's really what caught my eye. मैंने कहा ये ऐसा शख्स है जिसने ना सिर्फ एक मुश्किल में है, but he has passed through a very difficult time. He cannot see except for some very blind vision that he can just get impressions. And he has been able to write this book of his story. And it is actually a life-changing story of motivation, hope, and happiness. So we hope to cover his story a little bit in the connected video, or we hope that you can watch it till the end because it has some great golden nuggets and points that we can all learn from. And I'm sure that it would be very helpful to you, especially people who either may have disability or may not have disability, or maybe having other disabilities, which I say disabilities of our mind, where we get restricted and we don't want to do certain things because we feel limited. So this is a story of a person who has faced all of those challenges and got out of it, and how he did that. That will be covered in this short video. And we hope to see you on the other side, but do share it with people, because that would be very encouraging for Shadab Hashmi and the people who are going through similar disabilities to get out of them and see as a shining example in Mr. Shadab Hashmi, who's about 44 years old, but he has been through life and he is now an expert in Chinese language and has started his own business, which is a perfume business, because his strength was his nose, as he didn't have eyesight, but his nose was his strength. So, and his family supported him, and that's another story where relationships get stronger with understanding and caring and that kind of attitude. So it's all about attitude. And this is that story that I'd like to share with you all. And so hope you enjoy the story and you learn from it, and you share it with as many people as you can. To see you on the other end. Thank you. Take care. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जो भी ये सुन रहे हैं. बस मैं ये आज मेरा पहला एक सेशन है. मेरा नाम नवीद मिर्ज़ा है और मैं एक यूट्यूब चैनल है जो ऑल अबाउट एटीट्यूड विद नवीद मिर्ज़ा. तो उसका पर्पस ये है कि हम जो एटीट्यूड्स को जो हम अमूमन भूल जाते हैं, वो हमारे ज़हनी अंदर की जो कैफियत है और जो भी उसमें चलता है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक फिनोमेना है. लेकिन वो जब बाहर आता है जिसमें हम एक्शंस करते हैं तो वो एक एटीट्यूड्स एंड एक्शन बन जाता है. तो मैंने इसी तरह इसको डिफाइन किया है अपने जो भी मैंने ज़िंदगी में सीखा है,
और उसी से मैं ये आगे लेके चल रहा हूँ। इसमें बहुत से हमारे लोग हैं, मेरी अपनी एक स्टोरी भी है, हमारे और लोग हैं वो हमारे साथ अब शेयर कर रहे हैं अपनी स्टोरीज, और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी बहुत मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग उनकी कहानी है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला पूरी डिसेबिलिटीज हो जाती हैं, लेकिन हम लोग, बहुत से लोग जिनके पास पूरी सलाहियतें होती हैं, फिर भी हम उसको पूरी तरह हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन उधर कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ उनकी उनकी अपना कोई कसूर नहीं होता, लेकिन somehow they have some एक कुछ जेनेटिक होते हैं डिफेक्ट्स, कुछ और होते हैं, मगर उसमें वो फिर उसको कैसे ओवरकम करते हैं, वो एक बहुत बड़ी एक उनकी हिम्मत है, उनकी एक स्टोरी जो है वो हम सब के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। तो इसी तरह एक एग्जांपल है हमारे शादाब हाशमी, इनकी स्टोरी मुझे कुछ अर्सा पहले शेयर हुई। इनके वालिद साहब मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया इनको, तो और इनकी एक बुक है आई लॉस्ट माय लाइट्स, और वो मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो शादाब भी ये उसका ये है, तो शादाब इसके बारे में भी बात करेंगे। तो शादाब ने ये बुक लिखी है अभी रिसेंटली, इसको अमेज़न पे, और इसको वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं दुनिया के साथ। तो अभी हम शादाब ऑनलाइन हैं, इनके साथ हम सुनते हैं इनकी ज़बानी कि इनकी कैसे, इनको जब डिटेक्ट कैसे हुई इनकी जो ये डिसेबिलिटी है, और उसके बाद इन्होंने उसको कैसे फेस किया, उनके वो जो चैलेंजेस आए, और उसको वो सारी ये स्टोरी जो है, आई एम श्योर इट विल हेल्प एवरीवन। तो इसको फिर मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। शादाब से मैं पहला सवाल इस तरह ही पूछूंगा कि थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा ब्रीफ बताएं नाजरीन को, ताकि उनको पता चले कि शादाब कहाँ क्या कौन है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ओके विद दिस, शादाब टेक ओवर। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शादाब हाशमी है और मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, और इस्लामाबाद में ही बेसिकली पला बड़ा हूँ, और बाय एजुकेशन आई एम मास्टर्स इन चाइनीज़ लैंग्वेज, एंड बाय प्रोफेशन मेनली आई एम अ चाइनीज़ ट्रांसलेटर। तो जैसा कि नवीद साहब ने ज़िक्र किया कि हर शख्स के साथ कोई ना कोई इशू होता है दुनिया में, तो मेरे साथ भी इशू एक है। मैं थोड़ा-सा आपको उसके बारे में ब्रीफ करता हूँ। बचपन मेरा ठीक-ठाक था। आई वाज़ अ नॉर्मल चाइल्ड। खेलना, रात को निकल के साइक्लिंग करना, सितारे देखना, चाँद देखना, गुड़ियाँ उड़ाना, और मार्केट जाके रोटियाँ, दही लेके आना। तो अपनी पसंद की गेमें खेलना, मतलब इट वाज़ लाइक अ नॉर्मल चाइल्डहुड। तो देन ग्रेजुअली मुझे नाइट विज़न फ़ील हुआ कि वीक होना शुरू हो गई है, और फिर ये हुआ कि मेरी जो नाइट के वक़्त थी, नाइट विज़न मीन्स के विज़न इन लो लाइट। इससे ये मुराद नहीं कि घर के अंदर जो लाइटें ऑन है उसमें भी मसला हो, मीन्स के जब लाइट अवेलेबल नहीं है या डिम लाइट है। तो डिम लाइट में मैं जब बच्चों के साथ खेलता था, छुप जाना कहीं तो ये वो नहीं देते थे, और फिर इसी तरह लो लाइट में कोई चीज़ खेलनी तो वो मुझे बॉल गुम हो जाती थी, डिसअपीयर हो जाती थी, लाइक दैट। इस किस्म के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए। मेरा ख्याल है कि लेट्स से कि 10 इयर्स के राउंड अबाउट जब मैं था। तो तो ये एक बीमारी है, उसका स्टार्ट ऐसे होता है कि उसमें नाइट विज़न खराब होना शुरू हो जाती है फर्स्ट स्टेज पे। देन ये होता है कि स्कूलिंग में पता नहीं लगता, लेकिन उसका असर हो रहा होता है आहिस्ता-आहिस्ता। मीन्स के विज़न तो होती है लेकिन इट्स नॉट परफेक्ट। तो उससे ये होता है कि मेरे जैसे बच्चे जो है ना, वो लेस परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जिसको ना टीचर समझ सकते हैं, ना पेरेंट्स समझ सकते हैं, ना क्लास फेलोज, ना वो बच्चा अपने आप को खुद समझ पा रहा होता है कि मेरे साथ क्या मसला है। तो मतलब वो गेम खेलेगा तो उसमें वो लेस परफॉर्म करेगा। वो बच्चों के साथ स्कूल ट्रिप्स में जाने में हेजिटेट फील करेगा। वो चलते-चलते उसके पाँव की कहीं ठोकर लग जाएगी, वो खामखा किसी चीज़ से टकरा जाएगा, तो वो समझेगा कि शायद वो डल है, शायद इसका जो है ना वो थिंक प्रोसेस वीक है। वो जब बाहर तेज़ रोशनी से अंदर कमरे में दाखिल होगा तो आके पहले कुछ मिनट लगाएगा एडैप्टेबिलिटी में।
तो इस तरह बाकी भी बच्चे होते हैं, चूंकि सारे क्लास फेलोज, टीचर्स, नो वन इज अवेयर ऑफ दैट कि ये कोई इशू है। ये तो आहिस्ता-आहिस्ता जब वो ग्रो होती रहती है तो फिर इसके असरात और ज़्यादा नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। मतलब आहिस्ता-आहिस्ता ये नैरो विज़न में कन्वर्ट हो जाती है, व्हिच इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ टनल विज़न, कि आपको पेरिफेरी में नहीं नज़र आ रहा साइडों पे। जहाँ आप देख रहे हैं उधर नज़र आ रहा है। उसकी वजह से और शर्मिंदगी वाली बातें होना शुरू हो जाती हैं। किसी ने आपसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया, आपको हाथ ही ना नज़र आया, हुँ, तो दूसरे समझते हैं कि शायद ये एरोगेंट है। हुँ। मतलब वो एक स्ट्रेट अवे बंदे का कसूर भी नहीं होता, लेकिन लोग समझ रहे होते हैं कि ये एरोगेंट है। फिर हुँ, आप शाई फील कर रहे होते हैं बाकी क्लास फेलोज़ के साथ, बच्चों के साथ इधर-उधर आना-जाना, उसमें लोग फील करते हैं कि ये बिल्कुल ही ऐसे ही है ये बच्चा, इसको छोड़ो। तो इसकी वजह से बेहद सीवियर किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पैदा होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि एक सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं, ये हर कोई ऐसा बच्चा जो कि थोड़ा-सा इंडिफरेंट फील हो आपको, तो उसमें डिग आउट करें कि ये इसमें कोई मसला ऐसा है जिसकी वजह से कोई बैकग्राउंड है इसकी, जिसकी वजह से थोड़ा-सा अनयूजुअल ये बिहेव कर रहा है। तो फिर हुआ ये कि आहिस्ता-आहिस्ता स्कूल कॉलेज से होते-होते उसमें सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट ये भी आता है साइकोलॉजिकली, या एक दुखी पॉइंट ये आता है कि आप अपनी मर्ज़ी के फ़ील्ड्स नहीं चूज़ कर सकते। अब जी, जी। मेरा दिल था मैं भी एयर फ़ोर्स में जाऊँ, मैं भी आर्मी में जाऊँ, या मैं भी इंजीनियरिंग में जाऊँ, हॉस्टल्स में जाके रहूँ बाकियों के साथ। बट आई हैड टू स्टे एट होम विद पेरेंट्स फॉर द सेक ऑफ अ सेफ लाइफ एंड सेफ्टी। तो वो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। फिर अपनी मर्ज़ी की फ़ील्ड्स लोकली रहते हुए भी नहीं बंदा अडॉप्ट कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर मैं डॉक्टर बनना चाहूँ, तो आहिस्ता-आहिस्ता विज़न लॉस हो रहा है, तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, वेरी सिंपल। इसमें एक्चुअली ऐसा है कि शुरू में तो हर कोई ये समझता था, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स एंड डॉक्टर्स, कि शायद नज़र खराब है, जैसे आम बच्चों की हो जाती है, हाँ, भई हाँ, ऐनक हाँ। लगा लो, कि ऐनक का कोई इश्यू है। तो ऐनक हमने भी ऐनक लगा ली, ऐनक ही लगा रही सारी उम्र, ऐनक लगाते रहे। लेकिन मसला ऐनक से हल नहीं होता, इसलिए कि ऐनक तो सिर्फ़ फ़ोकस करता है आपका वो कॉर्निया का जो है ना, अंदर रेटिना तक का, वो फ़ोकस ठीक करता है। मसला ये है कि रेटिना इटसेल्फ डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर जो लाइट सेल्स हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप कैमरा ले लें, तो उसका लेंस ठीक है, लेकिन फ़िल्म पीछे खराब है, तो वो पिक्चर कैसे बनेगी उसपे? ये इश्यू शुरू में नहीं, ये तो अल्टीमेटली मुझे नहीं याद किस ईयर में, शायद मैं 8वीं 9वीं में होऊँगा या 7वीं में, मुझे बात याद नहीं। वहाँ पे फर्स्ट टाइम डॉक्टर ने डिटेक्ट करके बताया कि इस बच्चे को बीमारी है जिसका नाम है रेटिनाइटिस जी, पिगमेंटोसा, जी। हुँ, हुँ। और जिसका फिलहाल कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं। ये तो कोई 20-25 साल पुरानी बात होएगी, या उससे अच्छा। भी पहले की, एग्ज़ैक्टली याद नहीं मुझे। हुँ, तो उस वक़्त जो है ना, ये खबर पेरेंट्स के लिए स्पेशली एक बॉम्बशेल की तरह होती है कि आने वाला वक़्त और टफ़ हो जाएगा उनकी औलाद के लिए। एक तो प्रेज़ेंटली वो जो जिससे घबरा रहे हैं, लेकिन जब उन्हें ये पता लगता है कि आने वाला वक़्त और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, बिकॉज़ के आईसाइट लूज़ होएगी, ग्रेजुअली लूज़ होती ही जाएगी टिल या तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी, या बहुत ही नैरो हो जाएगी और बहुत ही लिमिटेड हो जाएगी। ये ये 2 ही बातें होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेज़ जो है वो मिड एजेस में ब्लाइंडनेस हो जाती है। लेकिन ब्लाइंडनेस भी ये नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। वो ब्लाइंडनेस इस तरह से है कि बंदा लीगली ब्लाइंड हो जाता है। यानी अच्छा। कि हम उसको ये कहते हैं कि देयर इज़ लाइट परसेप्शन, जैसे कि मेरे केस में लाइट परसेप्शन है। जैसे मैं अभी स्क्रीन को हुँ, देख रहा हुँ। हूँ, तो आगे से मैं अपना हाथ इस हुँ, तरह हुँ, गुज़ारूँ, तो हुँ। मुझे फ़ील होता है कि उँगलियाँ मेरे पास हो रही हैं ब्राइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट। हुँ, 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 हुँ। तो या कमरे में लाइट कहाँ ऑन है, ये मुझे पता लग जाता है। लेकिन आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज़ फेसेस, ऑब्जेक्ट्स, एनीथिंग। आई कैन नॉट वॉक इंडिपेंडेंटली। हुँ, हुँ, हुँ। तो किसी ये नई जगह पे चला जाऊँ, तो वो मेरे लिए डिपेंडेंसी होती है मूवमेंट में स्पेशली। अच्छा। अ, बंदा अपने घर में हो, अपने ऑफ़िस में, बिज़नेस प्लेस में, उस जगह से तो हर शख्स इतना यूज़्ड टू हो जाता है कि आँखें बंद करके भी अपने रोज़मर्रा के मामलात पूरे कर रहा होता है। लेकिन नई जगहों पे, अनयूजुअल जगहों पे
स्पेशली जहाँ पे चलने फिरने में कोई खुदाई हुई हो फर्ज किया, या कहीं पे पत्थर हो, कहीं पे अनइवन सरफेस हो, वो बहुत डेंजरस हो जाती है, उससे चोट आ जाती है। या कई दफ़ा आप पार्क में से अकेले जा रहे हैं, तो कोई दरख्त की टहनी आपके सर पे टकरा सकती है, आपको पता ही नहीं लगता। तो ये इस किस्म के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स आते हैं, और फिर इसका अल्टीमेटली होता ये है, एक उस शख्स पे ये उसका नतीजा निकलता है कि वो बहुत ज़्यादा छुप जाता है, वो बहुत ज़्यादा सहम जाता है, वो बहुत ज़्यादा अपने अपने स्फीयर के अंदर चला जाता है कि मैं ना ही एक्सपोज़ हूँ किसी चीज़ से, ना ही लोगों से मिलूँ-जुलूँ, मैं ना ही अपने आप को रिस्क में डालूँ। ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। तो तो ये आपने है ये किस इस स्टेज पे इसको फिर आपने टैकल किया, ये कॉन्फिडेंस आपको पता था ये हो रहा है, फिर आपने कुछ थोड़ा सा माइंड शिफ्ट अपना चेंज किया क्योंकि आपने फेस किया बहुत सी चीजें बचपन में, ये जो सारी चीजें आप बता रहे हैं, तो जी, उसके जी। बाद एक टाइम आया जब आपने उसको शिफ्ट किया, राइट? आपने कहा नहीं मैं इसको हैंडल करूंगा, वो क्या शिफ्ट था और कब आया आपकी लाइफ में? वो कहते हैं उर्दू में कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गईं। हम्म तो एक एक स्टेज ये आती है कि फिर बंदा कहता है यार बस, इनफ इज़ इनफ, अब इससे ज़्यादा मैंने डिप्रेस नहीं होना, ये क्या? मतलब मेरा अपनी एक थिंकिंग ऐसी थी कि मैंने ये डिसाइड किया कि जो कुछ जो कुछ लूज़ हो गया तो सो हो गया, लेकिन जो कुछ अवेलेबल है उसको तो यूज़ किया जाए ना। हम्म। तो ओके, ओके, ओके। जी। सर फिर ड्यूरिंग माय चाइनीज़ ट्रांसलेशन के हवाले से तो ग्रो करते-करते अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसलेटर्स मैं बन गया हूँ चाइनीज़ का। चाइनीज़ टू इंग्लिश, चाइनीज़ टू उर्दू। अच्छा, तो वेरी गुड। फिर अगेन लेकिन मेरे अंदर फिर भी एक थर्स्ट थी, एक आगे बढ़ने की। उस दौरान मैंने ये सोचा कि अभी और क्या-क्या मेरे अंदर चीज़ है जिसको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, जो हम्म अल्लाह ने दी है। अ, तो वो मैंने सोचा कि आँखें खराब हो गई हैं लेकिन नाक ठीक है। तो हम्म व्हाई नॉट कि कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें सेंस ऑफ स्मेल की ज़रूरत हो। हम्म। फॉर दैट पर्पज़ मैंने आहिस्ता-आहिस्ता परफ्यूम मेकिंग सीखी, और फिर ग्रेजुअली परफ्यूम्स का बिज़नेस भी शुरू किया, जो हम्म कि एक बड़ी एक रिफ्रेशिंग सी एक चीज़ थी हम्म। मेरी लाइफ़ में। तो उसके थ्रू ये हुआ कि मुझे जो है ना एंटरप्रेन्योरियल चीज़ें भी काफ़ी मुझे समझ में हम्म आ गई। हाउ टू डू बिज़नेस, सबसे पहले हाउ टू मेक थिंग्स, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, हम्म हाउ टू सेल इट। ये हम्म ये 2 चीज़ें ये भी सीखने का मौका इस तरह से मिला कि मैंने प्रैक्टिकली एक चीज़ को स्टार्ट किया। इसमें सर काम को प्रैक्टिकली शुरू करना बहुत ज़रूरी है। हम्म सिर्फ सोचते रहना और ये अज़्यूम करना कि भई मैं असल में बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, उससे कुछ नहीं होता। अनलेस हम्म यू टेक अ स्टेप, वो वो कदम, वो सफ़र इंसान को असल में सिखाता है बहुत सारी चीज़ें। हम्म। तो मतलब आपका मैसेज अब लोगों के लिए फ्रॉम दिस कि जी आपकी आपकी आईसाइट तो चले कमजोर हो रही थी, लेकिन आपका कुछ चीजें जो आपकी स्ट्रेंथ थी वो आपने उसके बारे में कुछ उसको कुछ किया, उसके उसके ना उससे आपने यूज किया और आपने हार नहीं मानी। तो आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल था ये आपने आपने समझा कि ये दिस इज माय माय स्ट्रेंथ। सो सो यू यूज दैट टू स्टार्ट जी, एन एंटरप्रेन्योरियल, एक आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो वो बहुत से लोग जो बहुत फिट होते हैं वो हर सिरा जिस तरह आपने कहा दिमाग का वो अपना इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल वो डिपेंडेंस पे करते हैं, किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। और आई थिंक जो आपको जर्नी बता रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, इसमें आपने कहा कि मैं आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, ऐसे ही था ना कि आपने कहा मैं अपनी सलाहियतों से कुछ चीजें अगर सीख लूंगा, टेक्निकल चीजें हैं बारी बनाना इतना आसान नहीं होगा, प्लस इसकी मार्केटिंग एंड पूरा एक प्रोसेस एक सिस्टम है एंटरप्रेन्योर बनने का। तो आप उस जर्नी पे फिर जी, चलते जी। हैं, राइट? तो लोगों जी, के लिए जी। ये भी मैसेज एक बहुत स्ट्रांग है जो आप अभी दे रहे हैं कि लोगों के पास जो अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करें और समझें कि अपने इनसाइड आउट जाएं।
कि बजाय कि आउटसाइड इन आए, कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहें, लेकिन आप अंदर की अपनी स्ट्रेंथ। और अच्छा, इसमें एक चीज बताएं कि आपका तवक्कल, मतलब इसमें अल्लाह का ज़ात, ज़ाहिर है हम लोग मुसलमान हैं और हम इसको बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? कि हम जी इस जी। सारी चीज में आपका एक तवक्कल अल्लाह पे, फेथ जिसको कहते हैं, बिलीफ, और ये सारी चीजें, इसका क्या रोल था? बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम आजकल के खासतौर पे सेकुलर वर्ल्ड में हमें ये चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं। मतलब जो वर्ल्ड वाइड आप देखें जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो इसकी बात नहीं करते हैं, राइट? बट हर एक की ज़ात में हमारी सक्सेस जो है उसका हमारा अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, और अल्लाह की ज़ात के साथ हमारा एक लिंक है। तो आपने इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया, या आपको यूज़ किया, या आप समझते हैं कि इसमें इसका भी रोल है? मैं ये समझता हूँ कि जब हम ये कहते हैं ना कि हमें हिम्मत करनी चाहिए और हमें डिप्रेशन से बाहर आना चाहिए और हौसला नहीं हारना चाहिए। इनके पीछे मजबूत नजरिया ना हो, ये बातें सिर्फ बातें ही हैं। ये बातें बेजान है, ऐसे फूल हैं जिनमें खुशबू ना हो। अ, हकीकत ये है कि अनलेस अगर किसी के पास बहुत कुछ है वो भी खत्म हो जाना है, किसी के पास कुछ भी नहीं वो भी खत्म हो जाना है, और सब्र के नतीजे में और शुक्र के नतीजे में आने वाली जिंदगी में हमेशा के लिए कंपनसेशन हो जानी है। इट इज अ बिग बूस्ट ऑफ मतलब डिप्रेशन से बाहर आने का या उससे बचने का या एक हौसला अफजाई का। तो फिर क्यों रोए हम लोग? हमें हमें मसला क्या है? हम फिर परेशान क्यों हो जब हमें इतना पता है कि ये एक आजमाइश का घर है और अल्लाह ने हमें यहाँ सिर्फ आजमाने के लिए भेजा है। तो फिर कोई कमी पेशी से हमें क्यों इतना फर्क पड़ना चाहिए? पूरा वक्त एक ना एक दिन सारे बराबर हो जाएंगे, बादशाह भी और फकीर भी, जब मट्टी के नीचे जाएंगे और जब दोबारा उठाए जाएंगे तो वो लोग तो ज्यादा बेनिफिट में होंगे जिनको दुनिया में, उनको तो उनकी कंपनसेशन स्टेशन ज्यादा मिल जाएगी। तो ये इस किस्म की जो बिलीव्स है ना, जो आने वाले अच्छे वक्त की एक उम्मीद है, ये है जो इनएक्चुअल बंदे को डिप्रेशन से बाहर निकाल लेती है और परेशानियों से बचाती है। अदरवाइज खाली खुली बातें हैं कि भाई हौसला करो, हिम्मत करो। हम्म, क्या पता हौसला करे जब आगे अंधेरा ही अंधेरा हो, ठोकरें खानी हम्म, हो। तो हमें बताया गया है ईमान के ज़रिए कि आगे अंधेरा नहीं है, आगे एक बहुत ब्राइट फ्यूचर आने वाला है जो फॉरएवर आना है। तो उसकी उसकी कोशिश कर ली जाए और अल्लाह पे तवक्कुल करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कहा है कि मैं रहमान हूँ और मेरी रहमत जो है मेरे गुस्से से आगे निकल जाती है। तो हम्म। ये तो एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए एक हौसला है और तसल्ली है और रिलैक्सेशन है इसके अंदर इन इन बातों में। तो मतलब अल्लाह आपने, ताला पे जी। मतलब कहने के बाद आपने जैसा एक बात की कि ये सारी चीजें अगर आप इसको प्रैक्टिकली लाइफ में यूज नहीं करेंगे तो एक बातें हैं बस। ज्यादातर लोग जो हैं वो बातें करते हैं, तवक्कल की बात करते हैं, लेकिन तवक्कल एक्चुअली उस पे पक्का उनका एक स्ट्रेंथ नहीं होती है उस बिलीफ में। ऐसे ही है। हाँ। तो आपने उसको प्रैक्टिकली इसको, क्योंकि आप यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, चैलेंज, यू उसको प्रैक्टिकली आपने आजमा के देखा। हाँ भी, अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाएं, होप अल्लाह ताला आपको देता है। और यही है कि आपका एक बुरा वक्त है, उसके बाद एक अच्छा वक्त जरूर आएगा अगर आप हिम्मत नहीं हारे, राइट? हिम्मत इज द मेन थिंग। सो दैट यू केप्ट ऑन विद दैट, आपने उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उसको आजमाया, और उससे आपको क्या फाइनली आप क्या समझते हैं, आपको क्या फीलिंग हुई, मतलब ऑफ अकम्प्लिशमेंट इन अ वे? हाउ डिड यू फील एज अ रिजल्ट ऑफ डूइंग दिस, लाइक ऑल ऑफ दिस, जो भी आपके स्ट्रगल्स? जी। सर, एक तो जो बड़े सिनेरियो में हमने बात की कि एक तो इस दुनिया के बाद आगे जो आने वाला टाइम है वो परमानेंट है। लेकिन विद इन दिस लाइफ पीरियड या लाइफ स्पैन, इसमें भी मुश्किलों के साथ आसानियाँ आती हैं। मसलन मैंने जिस तरीके से डाउनफॉल देखा अपनी वीएन का और अपनी डिसेबिलिटी को आते देखा, और जिस तरीके से उस टफ सिचुएशन को यानी मुसलसल खराब होते हुए को देखा है, फेस किया है।
तो उसके बाद एक हेल्दी माइंडसेट के साथ दोबारा एक और कूल माइंडेडली और गुस्सा नहीं करना और इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना। कूल माइंडेडली पे इत्मीनान से अपने एसेट्स को देखना है। मसलन सलाहियतें आपकी एसेट्स है ना, सिर्फ पैसा नहीं, आपकी सलाहियत आपका एसेट है। उस पे फोकस करें कि क्या-क्या मैं कर सकता हूँ अब भी। वो करना शुरू करें अल्लाह का नाम लेके, तो अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है। वो बंदे की उँगली पकड़ लेता है, वो दोबारा से बंदे को खड़ा कर देता है। जैसे मेरी एग्जांपल आपके सामने है, मैंने इस सिचुएशन में आई एम लीगली ब्लाइंड पर्सन, अभी मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, ये मेरी आर्टिस्ट्री है, मैं उसको देख नहीं रहा, ये मेरा एक अंदाज़ा है। मेरी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल है, लोग तो मुझे देख के हैरान हो जाते हैं कि ये हम मान ही नहीं सकते कि इसको नज़र नहीं आता। उसके बावजूद अभी मैंने जैसे बुक लॉन्च की है, ये एक इस पे बेतहाशा लोग खुश भी हैं और सरप्राइज़ भी हैं, प्लेजेंट सरप्राइज़ है उनको। बाय द वे इस बुक में बहुत इंटरेस्टिंग वाक़यात भी मैंने लिखे हैं, सिर्फ़ एक ड्राई सी स्टोरी नहीं है, बहुत एक्साइटिंग और कुछ थ्रिलिंग इसके एस्पेक्ट्स भी हैं। तो इस तरीके से हम लाइफ़ को इन इन ज़राए से एन्जॉय भी कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको रोना-धोना नहीं है, खुशी। कौन सा पीरियड ऐसा था जब आपके ये डिसेबिलिटी को आपने काफी अरसा इसको सफर किया, फिर इसको डिसेबिलिटी को आपने एक अपना स्ट्रेंथ बना ली? ये ऐसा ही हुआ ना कि आपने डिसेबिलिटी को कहा वो तो है, लेकिन उसको अपनी स्ट्रेंथ इतना बना ली कि आपने फोकस अपना चेंज कर दिया और उससे जो आप कर सकते थे, अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते थे, अपनी स्ट्रगल को थोड़ा, अपनी जो हार्ड वर्क है उसको आपने लेवल को इंक्रीज किया आपने, राइट? एंड यू हैड दैट फीलिंग कि आई कैन जी। अकम्प्लिश दैट माइंडसेट के जी आप कर सकते हैं, राइट? यू कैन आल्सो whatever way succeed in a, जो भी दुनियावी तौर पे भी आप इस दुनिया में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये शिफ्ट कब आया आपकी लाइफ में? ये एक्चुअली ड्यूरिंग माय स्टडीज जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली, इट वाज बीएससी इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स। तो उसके बाद दुरुस्त सिमत का इंतखाब करना जो था ना, वो था एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट कि मैं उसी भेड़ चाल में अगर चलता रहता तो फिर मेरे लिए बहुत परेशानी और डिप्रेशन था। लेकिन वो एक पॉइंट था जिसमें मैंने करेजियस फैसला किया कि मुझे अपनी लाइन वो लाइन अपनानी चाहिए पूरी जिंदगी के लिए जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, जिसमें मैं चल सकता हूँ हकीकतन। तो वो जब वहां से पहला कदम मैंने उठाया टूवर्ड्स चाइनीज लर्निंग, इट वाज कंफर्टेबल थिंग फॉर मी। वहां से मेरी मेंटल रिलैक्सेशन शुरू हुई। वहां से उसी ने मुझे कैरियर भी दिलाया, उसी ने मुझे हैसियत भी दिलाई, उसी ने मुझे इज्जत भी दिलाई, उसी ने मुझे एक्सपोजर भी दिया। तो ये इंसान को एक स्टेज पे आके ब्रेव डिसीजन ले लेना चाहिए, भेड़ चाल का शिकार नहीं होना चाहिए। सही। तो ये अच्छा मैसेज आपका है कि ये भेड़चाल का शिकार नहीं होना चाहिए, बिकॉज एवरी मोस्ट पीपल आर, जो बिल्कुल जिनके पास सारे एसेट्स हैं फिजिकल, और वो अपने फिजिकल एसेट्स तो होंगे, लेकिन आई थिंक इमोशनली उनके एसेट्स थोड़े कम रहते हैं क्योंकि वो भेड़चाल की उसमें आ जाते हैं। तो ये जो इमोशनल एटीट्यूडनल है ना, तो मेरे ख्याल में उसका क्या रोल आप समझते हैं? एटीट्यूड जैसे आप समझ रहे हैं या मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ, आप समझते हैं ये सारी चीजें आपका अपना एक इंटरनल एटीट्यूड जो था वो पॉजिटिव रखने से, एक होप रखने से, उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें, जो भी आपने अभी आप जिस ट्रैक पे जा रहे हैं? जी, जी। सर एटीट्यूड का जहाँ तक ताल्लुक है तो एटीट्यूड कैसा एटीट्यूड हो जो इंसान को एक सक्सेस की तरफ लेकर जाए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मेरे पास इसका एक ज़ाती जवाब ये है कि एटीट्यूड ये हो कि लेसन से फौरी तौर पे आप सीख लें, वक़्त ज़ाया ना करें। आप जो है ना, जो ठोकरें खाई हैं उनसे फ़ौरन सबक ले लें। सबक सीखना जो है ना लेसन से, ये एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है कि भई हमें मिसाल एक ले लें कि भई मैं एक मुझे अगर मैं थैंकफुल नहीं होऊँगा तो मैं सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होऊँगा, ठीक है? मेरी ज़रूरत है कि मैं एक हम्बल मेरी तबीयत बन जाए
मेरे एक शुक्रगुजारी की मेरी एक तबीयत बन जाए, ये मेरी ज़रूरत है। अगर मैं इस पॉइंट को नहीं सीख पाऊँगा या अपने ऊपर लागू नहीं करूँगा, तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा? मैं तो पहले ही नीडी हूँ। मुझे तो चारों तरफ से हेल्प चाहिए। मुझे तो ऐसा एक इंसान बन जाना चाहिए जो कि एक थैंकफुल और उसका जो है ना ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड हो, तो तब जाके मैं सक्सेसफुल बनूँगा और उसका फ़ायदा ये है कि आप एक बहुत एक्सेप्टेबल और एक बहुत खुशगवार शख्सियत बन जाते हैं सोसाइटी में। आप एक कांटा नहीं, एक फूल बन जाते हैं। तो तब आपके एटीट्यूड में ये चीज़ ज़रूरी है कि आप नहीं, तो ग्रैटिट्यूड को आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया और अपनी लाइफ के साथ इसको लिया। तो बहुत से लोग यही ग्रैटिट्यूड को अगर हम एक चीज़ को पकड़ लें, फेथ और होप तो आपने बेस बनाया था, और ग्रैटिट्यूड को भी बहुत उसको आपने यूज़ किया, तो हर चीज़ की आप नेचुरली यू बिकेम हम्बल, ह्यूमिलिटी आ गई आपकी उसमें ना कहीं। वो क्या जो एटीट्यूड ऑफ एरोगेंस जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ये तो बहुत बड़ा आपका एक लेसन है जो लोगों के लिए मेरे ख्याल में बहुत ही यूज़फुल है। और इसके अलावा इस सारी चीज़ में एक और चीज़ एलिमेंट जो मैं अभी लाना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ वाज, बिकॉज यू हैव रिलेशनशिप्स, आई थिंक यू दे वर वेरी, आपकी जो क्लोज रिलेशनशिप्स थी, आपने भी लिखा है किताब में, उनकी वजह से भी आपको बहुत encouragement हुई। तो there was a big element of love and respect and these things which kept you going. इसको थोड़ा सा आप थोड़ा elaborate करें तो ये समझ रहे हैं ना, मोहब्बत, प्यार, respect, a very important element in हमारी जो nourishment में या हमें जो grow करती है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि लाइफ आफ्टर मैरिज, उसका सक्सेसफुल होना भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी हैप्पी लाइफ में, क्योंकि उससे पहले तो आपके बहन भाई माँ बाप टू हैव अ वाइफ या हैव अ हस्बैंड वो साथ चलना ये एक अलग आर्ट है। और लव कैसे पैदा हो, ये भी तो एक क्वेश्चन है कि लव डेवलप कैसे हो। उसमें उसके पीछे ग्रेटिट्यूड ही है, उसके पीछे भी एक थैंकफुल एटीट्यूड ही है कि आपके लिए कोई कोई करता है तो मुंह ना बना के बैठ जाएं, और आपके बस में जो कुछ है आप वो तो करें अगले के लिए इन रिस्पॉन्स। भाई जो कुछ पॉसिबल है वो तो करें, ये एटीट्यूड शो करेगा कि यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग और योर स्पाउस। इन बातों से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक मोहब्बत पैदा होती है, और जो आपकी हेल्प कर भी रहा है, आपकी स्पाउस है, वाइफ है, क्योंकि जो शख्स ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है, मेरा ख्याल है कि किसी भी शख्स के लिए whosoever he is, कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन दुनिया में कामयाब लोग वही हैं जो हम्बल हैं, जो जो झुकना जानते हैं। क्योंकि जाती है कि फलदार दरख्त ही झुकता है, उसका साया भी होता है, उसका फल भी होता है। तो ये थोड़ा सा जो है ना अपनी ईगो से बाहर आना चाहिए। होती है, हर इंसान में होती है, एक लेवल की होती है, लेकिन इस नहीं कि आप बात को लेके अड़ जाएं, या कोई अगर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसको प्रोलॉन्ग करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है और कोई बात किसी स्टेज पे एक दूसरे की अच्छी नहीं लगती और छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, जो कि नेचुरल है, आगे प्रोलॉन्ग ना करें। योर नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे शुड बी ओके। मतलब लेट बायगॉन बी बायगॉन, जो बात कल गुजर गई सो गुजर गई, सार ना करें, अपने दिल में ना रखें, मतलब दोबारा स्माइलिंग फेस पे आ जाएं। अपने आप को, अपने दिल को, मतलब यूं कह लें कि भाई मैंने माफ किया, जो मेरे अगर मेरी गलती नहीं भी थी मैंने माफ कर दिया। तो क्या हर्ज है इस किस्म के एटीट्यूड में? सही ये है। इस तरीके से अपने आप को खुश भी रखेंगे तो ना शुगर होएगी ना बीपी होएगा।
सही। अच्छा जी ओके जी। बस सर वो एक सेइंग है ना उर्दू में कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो बहादुर बने, फेस करना सीखें और कोई बात नहीं, कोई कमी हो भी गई है तो कोई बात नहीं। आगे अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, उसके पास हमने जाना है, आगे रहमत ही रहमत है इंशाअल्लाह। तो ये था मेरा पैगाम। ओके थैंक यू शादाब इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे हमारी एक सफ़र है ये जी, तो इस सफ़र में आगे हमें काफ़ी आगे जाना है और जितने लोगों को भी इसका आई एम श्योर फ़ायदा होगा और अगर वो इसको आपकी स्ट्रगल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जो बहुत से हम लोग तो आपकी बुक का भी इंशाल्लाह ये हम दुआ करते हैं आपके लिए ये आपने एक बहुत अच्छा एफर्ट किया है एंड इट इज़ यू शेयरिंग योर स्टोरी तो जो लोग सुन रहे हैं आई एम जी, श्योर जी। उनको हम ये ज़रूर हम कहेंगे कि इनका जो ये ट्रीटमेंट इसका है बट अभी आजकल इस पे रिसर्च हो रही है और बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है तो जितने लोग भी हमें इस कॉज में हमें हेल्प कर सकते हैं शादाब को कहते हैं अबाउट $1 मिलियन इसकी कॉस्ट है अगर इसका कोई इलाज जो भी आज अभी जो आजकल के ज़माने में जो भी है तो उसमें आपको कुछ डिटेल पता है ये कहाँ पे ये है या पाकिस्तान में नहीं है इसका कोई इलाज है अ, एक एक इंजेक्शन है जो कि लक्सटर्ना 100% रिकवरी ऑफ आईसाइट बट टू सम एक्सटेंट तो जिस शख्स की भी नजर खो जाए उसके लिए थोड़ा सा भी थोड़ी सी नजर का भी आना बहुत ज्यादा मानी रखता है उसके लिए जिंदगी वापस लौट आने वाली बात है उसके लिए और उसके घर वालों के लिए तो मैं अगर देख पाऊं अपने माँ बाप को अपनी औलाद को अपने अपने स्पाउस अपनी वाइफ को तो ये मेरे लिए एक एक लाइफ चेंजिंग चीज हो सकती है तो कोई अगर इसमें इट इज $1 मिलियन कॉस्ट इस लक्सटर्ना की स्पार्क थ्योरेपेटिक्स कंपनी का नाम है अमेरिका में जो ये जिसने लॉन्च किया है और उनकी प्राइस इतनी ज्यादा है कि वो हमारी सोचों से ज्यादा है तो ये तभी मुमकिन है कि अगर इसको पूरी सोसाइटी अगर इसमें अपना रोल प्ले करे तो ना सिर्फ मैं बल्कि जैसे कई लोग इससे फायदा उठा सकते हैं और हमेशा के लिए आपके लिए दुआएं देने का तो बन सकते हैं ठीक है शादाब थैंक यू फॉर दिस मैसेज इंशाल्लाह फिर आपसे राब्ता होगा